ನೇರವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರು ನಮ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಈಗಲೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಪೂರ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವವರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮುಟ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೂ ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವೈದ್ಯರು, ಪೂಜ್ಯರು, ಬಹಳ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡೋದು, ಮಾತಾಡೋದು ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ತರಬೇತಿಯ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ. ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ, ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ಭವರ್ಲಾಲ್ ಆರ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಒಂದು 250 ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ 830 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಲ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಬೇರೆಯವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಏನಿರ್ತದೆ, ಆ ಆಸನಗಳು ಸಹ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದರ ಲಾಭಗಳು, ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕಾಣ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಿತೇಶ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಫೋನ್ ಮಾಡು. ಎಲ್ರು ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿ 1 ನಿಮಿಷ.
ನಿಲ್ಸಿ. ಎರಡು ಕಾಲ ನೇರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾದಗಳು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್, ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ. ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಕಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ. कालिन बेरड़ेगळु दोनों पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। मणकालुगळु अपने घुटनों को ऊपर उठाएं, नीचे ले जाए धीरे धीरे। एल्रू म्यूट ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಕಾಣೋ ತರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ. ಬನ್ನಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಪಾದಗಳು ಜೋಡಿಸಿ. ಸಿದ್ಧಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಡ ಕಾಲ ಕೆಳಗಡೆ, बल काल ಮೇಲೆ इट्ಕೊಳ್ಳಿ. सिद्धासन में बैठे आपका लेफ्ट लेग नीचे रहता है, राइट इसके ऊपर रखें। बहुत सरल और उत्तम आसन। मुष्टि बंद करें, सूक्ष्म व्यायाम धीरे धीरे। रिवर्स। चेंज। ಬೆರಳುಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಟೈಟ್ ಇರಲಿ. ನಿಧಾನ ಮುಷ್ಟಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಚೇಂಜ್. ಎರಡು ಕೈಗಳು ಬೆರಳುಗಳು ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ, ಮೊಣಕೈ ಈ ತರ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮ್ಮ ಫೋನ್. ओम ओम ओम। स्वामी जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उधर से आवाज
फादर जी भंगूरलाल जी की नहीं आ रही। ओम ओम ओम। पूज्य श्री जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओम। एक बार स्वामी जी आप बोलिए ओम। हितेश, स्वामी जी ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ 7ನೇ ದಿನದ ಯೋಗ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ, ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಯೋಗ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾ ತೀರ್ಥ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪೀಠ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪೀಠ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ್ ಗುರುಕುಲಂ, ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ವೇದ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ವೈದಿಕ ಗುರುಕುಲಮ ಏನು ನಡೀತದೆ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಈ ಒಂದು ಯೋಗ, ಆಯುರ್ವೇದ, ವೇದ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಯೋಗ ಋಷಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮದೇವ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು 100 ಜನ ದಿವ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಗುರುಕುಲ ವೈದಿಕ देव सवितर दुरितानि परासुव भद्रम तन्नासु। वैदिक गुरुकुलम की परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्थापना की है, तो उस वैदिक गुरुकुलम की व्यवस्थाओं को देखते हुए अपना भुवस्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः। योग ऋषि जगत में योग का ध्यान करने वाले प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य महाराज समस्त गुरु सत्ता को नमन और प्रणाम करते हुए आज के इस योग सत्र का आरंभ करते हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही गुरुनिष्ठ, गुरु का प्रियाचरण करने वाले, जो अपने तेजस्वी अपने प्राण अर्पण पुरुषार्थ से संपूर्ण कर्नाटक प्रांत को योगमय कर रहे हैं, ऐसे स्नेही आदरणीय हमारे भाई भंवरलाल जी तथा उनके साथ सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में जो भाई योग यज्ञ का अनुष्ठान बड़ी साथ चला रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम कर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आए आरंभ करते हैं आज का योग सत्र उस पिता परमेश्वर के ध्यान से, क्योंकि ध्यान में ही सारी समस्याओं का समाधान है। प्राणायाम विद्या के तन मन और वतन के रोगों को दूर करने का यह जो महामंत्र, इस महामंत्र को, इस महा विद्या को, जो संपूर्ण संसार में आरोग्यता का आधान कराने वाली विद्या है, प्राण विद्या है, योग विद्या है, इसको आत्मसात करते हैं। परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते, ओंकार उच्चारण, गायत्री का उच्चारण, गायत्री सावित्री महामंत्र का उच्चारण मन में, तन में कोई हलचल नहीं। गहरी श्वासों के साथ पुनः ओंकार का गहरा उच्चारण। तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस् तदर्थ भावना। उस परम पिता परमेश्वर के
हर प्रकार से इस संसार का हित करने वाला, इसका पालन पोषण और प्रलय करने वाला वह जगत नियंता परमात्मा कण कण में व्याप्त है। हर क्षण हर पल उसकी सन्निधि में अपने आप को रखना। दिन प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन करना, उसका ध्यान करना, जिससे हमारे जीवन के, इस जगत के संपूर्ण दोष, दुख, दुरित जाते हैं। ईश्वर का जो विधान है, जो संविधान है, उसका हर पल अपने आचरण में, व्यवहार में उतारना, उसको और योग में आध्यात्म जीवन के लिए रखें। अष्टांग योग का पालन वरदान है। को इस जगत को बनाने का एक ही उपाय है, अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंगों के द्वारा तन का आरोग्य सुनिश्चित करना है। एकाग्र नित्यम हितमात्मनः एकाकीतयानो हि श्रेयोधिगच्छति। इस संसार का संपूर्ण व्यवहार, उत्तरदायित्व, जो कर्तव्य, उसको भी निभाना है। साथ साथ अपने को से, रोगों से, दोषों से भी बचा करके रखना है। जब भी हम एकांत में हो, शांत में हो, उस ईश्वर का अवश्य चिंतन करें। गहरे श्वासों के साथ शरीर को, मन को शिथिल कर गहरे श्वासों को भरना और छोड़ना। मन में कोई कुंठा नहीं, तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। जब हम मन से चंचल होते हैं, उद्वेग में होते, वेग में होते हैं, आवेश में होते हैं, तो ध्यान नहीं घटित होता, बल्कि हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए सांख्य का ऋषि उपदेश देता है, ध्यानम निर्विषयम मनः। से दूर कर दीजिए, अरे है वो हमको प्राप्त करेगी। जो राग इस संसार में, उस राग से दूर कर दीजिए। ऐसा ध्यान उस भगवान का करना है।
रागोपहति ध्यानम, राग का क्षय हो जाना, डिवाइन डिटैचमेंट। राग में विराग, वैराग्य पूर्वक जीवन को जीना, यही उपाय है ध्यान। संपूर्ण आरोग्यता के लिए ध्यान ही समाधान है, मेडिटेशन नहीं। मेडिटेशन ही हमारे जीवन का मेडिसिन है। जो दवाइयां हैं, दवा खा खा करके बीमार हो रहे हैं और साइड इफेक्ट हो रहा है। तो संपूर्ण आरोग्यता का मूल मेडिटेशन है, ना कि एलोपैथी मेडिसिन है। ध्यान है तद्वृत्तयाः। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की जो क्लेश मूलक वृत्तियां हैं, जो हमको पाप की ओर, हमको बुरे विचारों की ओर ले जाती हैं, उससे बचने का एक ही उपाय है ध्यान। वो वृत्ति ध्यान के द्वारा रुक जाती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक क्षण मग्न होकर के जीवन को बनाने का प्रयास करना चाहिए। ओंकार प्रणव प्रणवो धनुषरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते आप्रमत्तेन वेधव्यम् सर्वतन्मयो भवेत्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकारं तं नमाम्यहम्। ओंकारं तं नमाम्यहम्। संपूर्ण सृष्टि के कण कण में जो व्याप्त है, सबको चलाने वाला है, उस परम पिता परमेश्वर के मुख्य नाम का उच्चारण श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रातः शाम जरूर करना है। ऐसी दिनचर्या हमारी हो। योग आरंभ के पहले भी ध्यान कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, ये हमारी सुविधा के ऊपर निर्भर करता है। धीरे से हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में भाषण करेंगे। गरम हथेलियों को आंखों पर लगाते हुए आंखों को खोलेंगे। ये कि सुलभता के ऊपर निर्भर करता है, कितना आप समय दे सकते। 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा जरूर आपको अब ध्यान
जब हो गया तो अब शरीर को भी स्वस्थ, क्योंकि सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयित, सूक्ष्म व्यायामों के साथ साथ कुछ कठोर व्यायाम भी शरीर की आरोग्यता के लिए परम आवश्यक है। ऐसे हम एक बार पैरों को फैला लीजिए। जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है कि हमारा शरीर चल नहीं सकता है, शरीर की आवश्यकता है भोजन, आहार। और आहार केवल भोजन नहीं होता है, आहार पर यह है कि जो भी हम ग्रहण करते हैं इंद्रियों के द्वारा, आंखों से देखने का आहार है, कानों से शब्द का आहार है, जो नासिका से घ्राण प्राणवायु है, गंध है, उसको लेने को भी हम आहार कह सकते हैं, तथा रसना से जो हम चखते हैं, भोजन के रूप में, आहार के रूप में जो लेते हैं, वो भी आहार है। जो त्वचा है, इस केंद्रीय से जो हम करते हैं, वो भी आहार के रूप में ही आता है। तो आहार हमारा बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। ये तो शरीर का आहार हो गया के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है। और जो आत्मा का आहार है, जो हमारे मन को अच्छा करने का आहार है, वह है ध्यान, वह है ईश्वर की आराधना, ईश्वर का गुणगान, उसका चिंतन, उसका मनन जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ज्ञान परिपक्व होता है, हमारे समस्याओं का समाधान होता है। तो इस सारी गतिविधियों को, सारे चिंतन को अच्छा करने के लिए अच्छा विचार, अच्छा आहार परम आवश्यक है। परमात्मा हमको सारा सामर्थ्य देता है, उन सामर्थ्यों को हमको अपने जीवन में अर्जित करना है, उसको पाना है। क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, मनुष्य का जीवन पाकर के भी यदि हमने अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं पाया, यदि अपने अपने लक्ष्य एम को नहीं हमने सिद्ध किया, तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ने जो सामर्थ्य हमको दिया है, इस सामर्थ्य का 100% सदुपयोग करना है। एक एक क्षण क्षण का सदुपयोग, जागरूकता हमारे लिए परम आवश्यक है। तो कुछ आपको मैं आसन, कुछ व्यायाम बताऊंगा। परम पूज्य श्री स्वामी महाराज ने हजारों लाखों लोगों के जीवन में योग का जो आधान किया है, करोड़ों करोड़ों लोगों को आरोग्य दिया है, यह बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं है। करोड़ों लोगों के जीवन को स्वामी जी ने बचाया है इन योग प्राणायाम से, ऋषियों के ज्ञान से। तो हम भी जब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल बनेगा, अच्छा बनेगा, सच्चा बनेगा। तो हम प्राणायाम का अभ्यास बाद में करेंगे, पहले कुछ व्यायाम एकाग्रता के लिए भी, मोटापे के लिए भी, और शरीर के लचीलेपन के लिए, क्योंकि शरीर और मन दोनों लचीले होने चाहिए। तो कुछ युवाओं के लिए भी और कुछ जो रोग विशेष हैं उनके लिए हम आपको आसन और व्यायाम, कुछ कठोर व्यायाम भी युवा पीढ़ी के लिए, यूथ के लिए, युवक युवतियों के लिए बहुत आवश्यक हैं। एक बार सभी खड़े, और आदरणीय भंवरलाल जी को मैं पुनः बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह अवसर मुझको प्रदान किया। एक बार सीधी मुद्रा में खड़े होकर के गहरे श्वासों के साथ हम ताड़ासन, दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, गहरे श्वास। ये प्रत्येक युवा को, प्रत्येक युवती को, बच्चों को जरूर करना चाहिए। शारीरिक लिए, मांसपेशियों के लचीलेपन के लिए, स्नायु की सुदृढ़ता के लिए, स्नायु सबल होते हैं,
गहरे श्वासों के साथ रुकना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। एक एक क्रिया, एक एक आसन बहुत ही धैर्य पूर्वक करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। पुनः गहरी श्वासों को भरिए और पुनः ऊपर कर रहेंगे। परम पूज्य श्री स्वामी कहते हैं कि एकाग्रता, निरंतरता आवश्यक है। विधि पूर्वक कोई भी प्राणायाम है, विधि का अतिक्रमण नहीं करना। विधि ठीक हो जाए, फिर उसके लिए निरंतरता की आवश्यकता है। और निरंतरता है लेकिन एकाग्रता नहीं है तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। पूरे लाभ के लिए आपको पूर्ण एकाग्र होकर के कार्य करना पड़ेगा। 2 बार, 3 बार, 5 बार इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। हमारे नस नाड़ियों के तंत्र सुडौल और सुव्यवस्थित रक्त संचार अच्छा करता है। लंबाई भी इससे, आप जो छोटे छोटे हैं वो भी थोड़े से लंबे हो गए। बच्चों के लिए तो बहुत आवश्यक है। तिर्या करेंगे, बहुत ही अच्छा आसन, बहुत से करनी है। तो ये एक क्रिया को सांसों के साथ करना है। सांसों को भरते हुए पूरा साइड में राइट। जब भी आप झुकेंगे श्वासों को भर करके रुक प्रयास करें। और फिर इसके अभ्यास जब लगता है कि अभ्यास हो गया तो इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। सहजता के साथ धीरे से हाथों को आएंगे और पुनः अब हम के लिए वृक्षासन, ध्रुवासन कई नामों से जाना जाता है, बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। एक ही बहुत अच्छा है। धीरे से कुछ करते हैं। लोक में इस बात को माता पिता भी कहते हैं, सभी बड़े कहते हैं, कोई भी काम करो ध्यान से करो। ध्यान का यही है कि जिस समय जो कर्म हम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसमें पूर्ण सजगता, पूर्ण एकाग्रता। बिना एकाग्रता के, बिना सजगता के वो कार्य अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए एकाग्रता परम आवश्यक है। धीरे से दोनों हाथों को समना, हथेलियों को नीचे करते हुए फिर साइड से ले आए, दूसरे पैर से करेंगे। योग में जीवन है, वही आरोग्य है, और जहां भोग है वहां रोग है। यत्र तत्र रोगाः। इसलिए योग में जीवन के लिए, आध्यात्म में जीवन के लिए यह प्राणायाम, योग, ध्यान, आसन बहुत आवश्यक है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल। इस शरीर को पा करके यदि हमने इसको आरोग्यमय नहीं बना पाए, यदि हमने रोगों को शरीर में जमा लिया, तो उस परमात्मा के उसका अपमान होगा। ये साधन है। चलिए हम कुछ अभ्यास करते हैं यौगिक जॉगिंग के, जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर हमारा आरोग्यता को प्राप्त होता है और शक्तिशाली होता है। बिना इसके हमारा स्वस्थ नहीं रह सकता, मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तन और मन तथा वतन के स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। यह परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो पैकेज बनाए हैं, प्राणाभ्यास, सूर्य नमस्कार के
पाराभ्यास यौगिक जॉगिंग के और दंड बैठक बिल्कुल देसी व्यायाम, स्वदेशी का, आयुर्वेद का, योग का जो महाअभियान है, जो महायज्ञ है, वह पतंजलि योग पीठ के द्वारा संपन्न हो रहा है और संपूर्ण दुनिया इस ओर आ रही है। गहरे गहरे श्वासों के साथ, थकना नहीं, रुकना नहीं। अगला अभ्यास धीरे धीरे युवाओं, युवतियों चरित्र निर्माण के लिए, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए परम आवश्यक है। योग प्राणायाम जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे विरासत है, जो वेदों का ज्ञान विज्ञान है, उसको जब अपने स्वभाव में तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं धीरे धीरे अभ्यास, धीरे धीरे अभ्यासों की परिपक्वता बढ़ती है। धीरे धीरे नीचे जाए पूरा से विषम विद्या, अभ्यास से विद्या बढ़ती है और अभ्यास ही हमारा करने वाला है। कितनी भी बड़ी विद्या हो, यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उसका ह्रास होगा। अभ्यास शरीर का लचीलापन आवश्यक है। स्वभाव में लचीलापन, मन में लचीलापन हो, शरीर में लचीलापन नहीं ठीक है। जो अकड़ जाते, एक दूसरे से अकड़ जाते हैं, व्यवहार में अकड़ जाते हैं, उनका शरीर भी बहुत जल्दी अकड़ जाता है। इसलिए चाहिए। चलिए अगला अभ्यास, गहरे श्वास। जब भी आगे आए श्वासों को छोड़ेंगे, पीछे जाएंगे, श्वासों को भरेंगे। हाथ बिल्कुल सीधा, बीच से नहीं है, हाथ बिल्कुल सीधा रहेंगे, अतिक्रमण नहीं करना। दो बार, 3 बार, 5 बार। और जो मोटापे से परेशान है, को मोटापा है, इन अभ्यासों को 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार करें तो विशेष लाभ होगा। चलिए अगला अभ्यास, धीरे से अपने हाथ को, राइट हैंड को उठाएंगे, अपने कनपटी से लगाएंगे, धीरे 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 नीचे लाएंगे। इस प्रकार से श्वासों को भरते ऊपर, पुनः छोड़ते हुए, इसको बार बार करिए। 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार। जो इसको करता है वो साइड से जो मोटापा है या ज्यादा टाइटनेस है वो बहुत लचीला हो जाए।
इसी प्रकार से अभ्यास जिन वो आगे झुकने वाले आसन या व्यायाम ना करें, जिनको हार्निया होती है वो पीछे झुकने वाले ना करें। आज स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, जो टिस वाली बीमारियां हैं वो अधिक हो रही हैं। इससे तोड़ देती हैं, अर्थात परेशान कर देती है, हताश कर देती हैं और लोग तबाह हो जाते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं बीमार कुचक्र से। ये जो दवा जो में जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते, जो है लूट चारों। तो इस लूट से बचने के लिए हमको स्वयं सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। अधीन सुख नहीं, पराधीनता में कभी सुख नहीं है। तो स्वाधीनता में है, स्वतंत्रता में है, परतंत्रता में नहीं है। चलिए अभ्यास 11वां, गहरे श्वासों को भरेंगे, ऊपर जाते हुए छोड़ेंगे, पुनः भरिए, पुनः नीचे आते हुए छोड़िए। इस प्रकार से इसका अभ्यास लगातार के साथ, स्ट्रेस के साथ नहीं करना, इंटरेस्ट के साथ करना, रुचि पूर्वक करना, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक करना, उत्साह के साथ करना। गहरे गहरे श्वासों के साथ। अगला अभ्यास, इस प्रकार से ये 12 अभ्यास यौगिक जॉगिंग के। अब हम सूर्य नमस्कार के, उपयोगी है, में हमको सदुपयोगी बनाता है, निरोगी बनाता है, शरीर नीचे से ऊपर तक, एड़ी तक, एड़ी से चोटी तक आरोग्यता को प्राप्त करता है। हमारे शरीर मजबूत होने चाहिए और मन कोमल होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। इसलिए हम भी और मन से भी, दोनों से अच्छे बने। एक, गहरे श्वास भरते हुए, 2, 3, 4, 5, 9, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11,
प्रकार से एक बार से लेकर के 12, 25 बार, 50 बार, और अब तो लोग बार का अभ्यास सुन। सूर्य नमस्कार, exercise for divine health, divine thoughts. Every day, do it and achieve health. पूरे प्रत्येक दिन करना है, थकना नहीं, और विषयों में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस प्रकार से जरूर करना है। समय कम है, चीजें बतानी है। अब अगले पड़ाव की ओर हम चल रहे हैं। कुछ बैठक और कुछ बताएंगे। 8 बैठक और 12 दंड। परम पुरुष आया ना, शरीर को स्टिल बॉडी बना देता है, बिल्कुल कसा हुआ शरीर। हमको जरूर करनी चाहिए। 5, 5, 10, 10 कम से कम 25 बार का अभ्यास इसका जरूर करें। युवा हो, युवती, सभी के लिए। छोटे छोटे बच्चों के हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, युवावस्था में ही बुढ़ा नजर आने लगते हैं, ओल्ड का। इसलिए गहरे श्वासों के साथ नहीं, चरैवेति इस व्यायाम को, आसन को, प्राणायाम को रहना, थकना नहीं और रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। ये थोड़ा सा और तेजी से कर। ऐसे अब एक अभ्यास और इसका करते हैं, वही आपको बताएंगे। अगला अभ्यास, एक स्थान बार से लेकर के 10 बार, 20 बार, 30 बार ऐसे। जब आपको थकान महसूस हो तो दूसरा अभ्यास। चलिए युवाओं के लिए और जोरदार। जो व्यायाम है वो शरीर में रक्त संचार को बढ़ा, और जहां विशेष हलचल होती है, वहां पर शरीर में कोई रोग है, कोई दोष है, तो वो दूर हो जाता है। क्यों? जैसे प्रवाहित जल में कोई भी गंदगी जमा नहीं हो पाती। प्रवाहित नाली है, कोई नली है, कोई पाइप है, और उसमें लगातार पानी का प्रवाह है, जिसमें है, जिस पाइप में, वो पाइप कभी भी चोक नहीं होता। हमारा जब तेज रक्त के प्रवाह से, तो इनमें कोई रोग टिक नहीं सकता। ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा एंड ऑक्सीजन सर्कुलेशन भी ठीक होगा। इसलिए तेजी से करना, सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं करना, सामर्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। इसलिए लगातार जो सूर्य नमस्कार है, जो यौगिक जॉगिंग है, उसको जरूर करना है।
आज तो पूरी दुनिया में सूर्य नमस्कार करने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हो गए, अरबों लोग हो गए पूरी दुनिया में। और जिस व्यायाम, प्राणायाम और जिस योग की चर्चा हमारे ऋषियों ने की है, आज वह पूरे विश्व में छा रहा है और यही उपाय है। इसलिए किसी ऋषि ने लिखा, आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्म जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। एक जन्म की बात नहीं है, जो 100 सूर्य नमस्कार करता है वो इस जन्म में भी और जन्म में भी बलिष्ठ होता है, वह दुर्गुणों से रहित होता है, उसका जीवन बहुत ही दिव्यता से परिपूर्ण होता है। इसलिए सूर्य नमस्कार बहुत आवश्यक है। यौगिक जॉगिंग, सूर्य ऐसे जो देशी व्यायाम है, जो परंपरागत व्यायाम है, उनको जरूर करना है। और कुछ परंपरागत व्यायाम करते हैं, कुछ जो बैठक है, बैठक तो हमने कर ली। दंड के अभ्यास में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जो कराते हैं वो 25-25 करेंगे केवल। ऐसे तो 12 में फिर आपको समय लगाना पड़ेगा। पुनः जो बहुत आवश्यक है, नितान है, उनको आपको करना है। हाथों को सीधे रखेंगे और धीरे धीरे इस प्रकार से हम क्रम थोड़ा सा आगे पीछे बात नहीं, लेकिन करना है। हाथों को आगे करके पसीने की सुबह सुबह धारा निकलनी चाहिए। जितना पसीना निकलेगा उतना रोग हमारा शरीर से दूर होगा। वक्ष विकासक पहले हाथों को आगे किया अथवा पहले वक्ष विकासक कर ले, क्रम की वो नहीं है। फिर इसको 10 बार, 20 बार, 25 बार करें। पूरा नीचे, पूरा ऊपर। इसका अभ्यास हमारे हाथों को शक्तिशाली बनाता है। संपूर्ण शरीर में एक सौष्ठव का निर्माण होता है। पहले अंदर बाहर दो तरफ से हमने कर लिया। अब हाथों को साइड की ओर रखना है, हथेलियों को साइड को रखना है और 10 से 20 बार, 25 बार, जितना सामर्थ्य उतना करेंगे। हाथों को साइड में किया, हथेलियों को। अब इस प्रकार से पुनः इस प्रकार से 3 ओर से होगा। अब हथेलियों को अंदर की ओर, चारों ओर से हमारा निर्माण हो, कहीं न्यूनता ना रह जाए। हथेलियों को अंदर की ओर किया। इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराना है सामर्थ्य के अनुसार। इस प्रकार से 20 बार का अभ्यास, 4 राउंड किए, 25-25 बार किया तो 100 हो गया और थकान भी नहीं लगी। कार्यांतर ही विश्राम है, आराम हराम है। अब 20-20 बार का अभ्यास। ऐसा जब शरीर बनेगा, पसीना टप टप चुभेगा शरीर से, तो रोग नहीं आएंगे, सारे रोग बह जाएंगे, हमारे पास बिल्कुल नहीं आएंगे। तो दंड 10 बार, 20 बार का अभ्यास करेंगे और मिश्र दंड, 2 दंडों का अभ्यास बहुत आवश्यक है। बिल्कुल हाथों को सामने समतल पैरों
इस प्रकार से पूरा ऊपर, ये पूरा नीचे, पूरा ऊपर, ये संकेत रूप में मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। और अंतिम अभ्यास, ये जो बहुत नितांत मैं आवश्यक करवा रहा हूं, और इनको प्रत्येक युवा को और युवती को जरूर करना चाहिए। जो शरीर से मन से मजबूत है, ऐसे बुजुर्गों को भी करने का अभ्यास करना चाहिए। अंतिम अभ्यास मिश्र दंड, सारे दंडों का मिश्रित है ये, और शरीर को पूरा ऊर्जा से भर देता है, लचीलापन लाता है, जोड़ों के दर्दों को धीरे धीरे दूर करता है। अभ्यास इसका निरंतर हमको करना चाहिए। चलिए 10 से 20 बार का अभ्यास करेंगे मेरे साथ, थकना नहीं, रुकना नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से इस अभ्यास को करना है। चलिए बैठ जाइए और पैरों को फैला लेंगे धीरे धीरे, गहरे गहरे श्वासों के साथ। बटरफ्लाई, तितली आसन, पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाए। एक बार सुबह सुबह तो पसीने से जरूर स्नान करना चाहिए, जरूर नहाना चाहिए पसीने से, और पूरे दिन फिर आरोग्यता हमको रहती है। शरीर हल्का हल्का रहता है और मन भी ठंडा ठंडा, कूल कूल रहता है, अनुकूल रहता है, प्रतिकूल नहीं होता है। इसलिए यदि भोजन ना मिले एक दिन, नाश्ता ना मिले एक दिन, ब्रेकफास्ट ना मिले, लंच ना मिले, डिनर ना मिले, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन योग प्राणायाम आसन व्यायाम रोज करना है। चलिए एक बार मैं क्रमशः नख से शिख तक के आपको कुछ प्रमुख सूक्ष्म व्यायाम बताता हूं। दोनों हाथों को दंडासन में रखेंगे और बिल्कुल कमर बिल्कुल सीधी, कमर बिल्कुल सीधी हो जाए, और इस प्रकार से पैरों के पंजे को धीरे धीरे, केवल अंगुलियों को चलाइए, केवल संकेत मात्र कर रहा हूं आपके नख से शिख तक के कैसे सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। गहरे श्वासों के साथ आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे, ऐसे। इसके बाद पूरे पंजे को श्वास को भरते हुए करें, श्वास को छोड़ते हुए ढीला करें। स्लोली 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 आपको करना है, धीरे 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 धीरे, जल्दबाजी नहीं करना। गोल गोल चलाएंगे, हौले हौले गोल गोल पूरे पंजे को चलाएंगे, जोड़ करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ओर से। ये आपके पंजे के हो गए। अब घुटनों के लिए धीरे धीरे आपको ऐसे चलाना है,
पुनः इस प्रकार से हथेलियों को आगे पीछे करके नीचे करके ऐसे, ये बहुत आवश्यक है घुटने के दर्द के लिए। और दूसरी ओर से भी अकड़न जकड़न नसनालियों में भी, शरीर में और हमारी जुबान में भी आ जाती है, तो ये खतरनाक है बहुत ज्यादा। आगे पीछे पैरों को करें इस प्रकार से। अब धीरे से राइट पैर को ऐसे करेंगे और धीरे ऊपर नीचे सांसों को लेते और छोड़ते हुए आगे पीछे ऐसे करेंगे, साइड में पूरा घुमाएंगे और धीरे से ऐसे कर लेंगे इसको। इसके बाद दूसरे पैर से भी इसको ऐसे करेंगे, ये बहुत आवश्यक है। पंजे को भी ऐसे चलाइए। क्रम का जब ध्यान रखें तो आप देखेंगे 10 दिन 15 दिन 1 महीने के अंदर आपके समस्त जोड़ बिल्कुल ठीक हो गए, दर्द समाप्त हो गया। चलिए अब यहां से लेकर के यहां तक का हो गया। अब आगे चलते हैं धीरे से गोल गोल। ये कमर के लिए बहुत आवश्यक है। चक्की आसन गोल गोल चलाएंगे, थकना नहीं, रुकना नहीं, जितना नीचे जा सकते नीचे जाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ओर से। विधि का अतिक्रमण नहीं करना, जैसी जो विधि है। कुछ लोग हाथ बीच से मोड़ लेते हैं और ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं। इट इज रॉन्ग मेथड। राइट मेथड क्या है? दोनों हाथों को सीधा रखना है, ये बीच से मोड़ना नहीं। जब पीछे जाए श्वासों को भरे, आगे आए श्वासों को छोड़े। चलिए अगला अभ्यास स्थित कोणासन में। ये एकाग्रता पूर्वक करना है। तो यहां से लेकर के आपके गर्दन तक हम पहुंच गए। चलिए पैरों को एक बार सिद्धासन में बैठ जाते हैं, पद्मासन जो आपको रुचि हो जिसमें। और अब गर्दन के ऊपर के हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। धीरे से सांसों को छोड़ते हुए गर्दन को आगे करिए, सांसों को भरते हुए पीछे, पूरा पीछे ले जाइए। धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। शनै अर्था शनै पंथा शनै पर्वत आरुहे शनैर्विद्या च धर्मस्य व्यायामस्य शनै शनै। धीरे धीरे इनको करना है, जल्दबाजी में हानि हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे। फिर धीरे से दाएं बाएं दोनों ओर गर्दन को घुमाएं, लेफ्ट राइट ऐसे चला करके फिर धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए। थकना नहीं, रुकना नहीं। एक क्रिया करते करते थकान महसूस हो तो दूसरी क्रिया करने लगे। ये आपका दोनों ओर से होना है। अब गर्दन तक हम पहुंच गए। अब पुनः हाथों के लिए एक एक उंगली को ऐसे ऐसे चलाएंगे, श्वासों को भरते हुए उंगलियों को टाइट करें। फिंगर्स पर दबाव पड़ना चाहिए, बल पड़ना चाहिए, प्रेशर, केवल ओनली फिंगर्स। इसके बाद पूरे हथेलियों को बंद करते हुए भरते हुए पूरा टाइट करें। श्वासों को छोड़ते हुए ढीला करेंगे, श्वासों को लेते हुए पूरा दबाएंगे, जैसे आपके हाथ में बॉल है, आप बहुत उसको तेजी से दबा रहे हैं। पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरे साथ फोर्स के साथ इसको दबाइए। इसके बाद धीरे धीरे कलाइयों को घुमाइए, अंदर से बाहर की ओर
बाहर से अंदर की ओर गोल गोल घुमाएंगे। हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है। हथेली को सामने करिए, नीचे करिए, ऐसे। ये अब इनको प्रकार से श्वासों को पूरे सहज भाव से प्रसन्नता के साथ करिए। अनुष्ठान की भांति योग प्राणायाम को करना है, व्यायाम को करना है, थकना नहीं, रुकना नहीं, चरे वेती। चलिए साइड से इस प्रकार से करिए, साइड से भी कर लीजिए, ऐसे बहुत सुंदर इसको करना है आपको। हथेलियों को, अभी हथेलियां आपके ऊपर हैं, अब हथेलियों को एक बार नीचे करिए ऐसे, और धीरे धीरे इस प्रकार से। अब ये लंबी उड़ान भरनी है हमको बहुत दूर का जो पथ है, जो मार्ग है, उसको हमको पूरा करना है। पूरा लचीला करिए, आपके जो है कंधे से लेकर के आपके हथेलियों तक पूरा, ये जैसे पक्षी पूरा स्वतंत्रता से उड़ते हैं ना आकाश में, फ्लाइंग बर्ड्स इन द स्काई, ऐसे ही अपने को इस संसार के समुद्र में भी तैरना है। चलिए दोनों हाथों को अपने पर रखेंगे, धीरे धीरे पीछे से आगे की ओर चलाइए। पीछे से आगे की ओर, आगे से पीछे की ओर, ऐसे। बहुत सुंदर ढंग से करना, थकना नहीं, रुकना नहीं। चलिए थोड़ा सा हाथों को इस प्रकार से मिलाइए। और गर्दन के लिए स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, ऐसी बीमारियां आजकल होने लगी हैं। गर्दन में अकड़न जकड़न हो गई, हाथों में, भुजाओं में, कलाइयों में, छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को इस जो है जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रत्येक क्रिया को, प्रत्येक कर्म को प्रकार से हमको करना है। चलिए अब ऐसे मिला करके पीछे से आगे, आगे से पीछे की ओर दबाव देंगे। 2 बार 3 बार, जितना जहां पर विकार है उतना उसको अच्छा करना है। साइड से भी करेंगे। आगे से भी कर लीजिए। अपने ठुड्डी से नीचे से चिन यहां भी दबाइए। ये कान के पॉइंटों को दबाइए, चारों ओर से कान के पॉइंटों को दबाइए, पूरा दबाइए, तेजी से दबाइए। और इसके बाद दोनों हथेलियों से कान को रगड़ दीजिए, ऐसे पूरा रगड़िए। पूरा रगड़ दिया, इसके बाद अपने दोनों भौहों के ऊपर ना आपके आंखों, फोरहेड के नीचे धीरे धीरे दबाइए, ऐसे नीचे की ओर प्रकार से। जो आपकी ग्रंथि है इसको भी दबा दीजिए। चेहरे पर हाथ को रखते हुए नासिका के पास कुछ बिंदुओं को दबाइए, एक ऊपर के। ये बहुत आवश्यक है। ऐसे करके हम ये नीचे से ऊपर तक के कुछ प्रमुख मैंने सूक्ष्म व्यायाम बताए, और इनको यदि हम रोज करते हैं, थोड़ा सा 3 से 5 मिनट का समय निकाल करके इन सूक्ष्म व्यायामों को भी करते हैं, जो अशक्य है, ज्यादा शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकते हैं, यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से उनका शरीर कभी भी रोगी नहीं होगा, रक्त संचार अच्छा होगा। 2-5 इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको मैं आपके समक्ष रखता हूं। आजकल की जो बीमारियां हैं, गैस, अपच, खट्टी डकार आना, जो है शुगर है, या पेट संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मंडूक आसन और योग मुद्रा आसन, शशक आसन, तथा और भी
कुछ प्रमुख आसन हैं, क्योंकि समय तेजी से आगे जा रहा है, फिर कभी अवसर मिलेगा तो मैं इस पर निवेदन करूंगा। 2-4 आसनों को हम चाहें तो कर सकते हैं अथवा प्राणायाम ही कराएं। हमारे आदरणीय भंवरलाल जी का क्या निर्देश है? आवाज आ रही है उधर से? प्राणायाम सत्र प्रारंभ कर देंगे स्वामी जी। 40 मिनट है, 40 मिनट बचे हैं, प्राणायाम के दे दीजिए। जरूर जरूर जरूर। तो प्राणायाम, सबसे पहले प्राणायाम करने के लिए मुद्राओं का चयन बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा आहार और ऐसा वातावरण है चारों ओर, और 90 से 95% लोग वायु विकार से परेशान हैं, जोड़ों के दर्द से परेशान है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान रहते हैं। ये बहुत आवश्यक है। तो जब आपको कोई रोग ना हो, कोई रोग विशेष ना हो, कमजोरी ना हो, तब तो अलग अलग मुद्राओं का आप चयन कर सकते हैं। परंतु परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भी इस पर विशेष बल देते हैं, जोर देते हैं, और स्वयं भी वो ऐसा करते हैं। तो वायु मुद्रा में ही प्राणायामों का अभ्यास बहुत उत्तम होगा। तो आप जब भी प्राणायाम की मुद्रा में बैठे, ये हमारे वात विकारों को दूर करता है। इस अंगूठे के नीचे इस उंगली को दबा देंगे और थोड़ा सा प्रेशर के साथ बैठिए, और दोनों हाथों को आप घुटने पर रखिए। कुछ लोगों को जो है हमने देखा कि वो या तो बिल्कुल ऐसे बैठ जाते, झुक करके बैठ जाते, हाथों को जमीन पर रख देते हैं। इट इज रॉन्ग मेथड। इससे लाभ नहीं होगा और इससे हानि हो सकती है। कमर झुका देते हैं, नीचे हाथ रख देते हैं और करते हैं, तो वो लाभ नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। उससे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेरुदंड आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यदि कोई बैठ भी नहीं पाता, यदि लेट करके भी करना चाहता है, तो उसको तखत में या सख्त कोई आसन उसमें लेटा करके ही कराएं। गर्दन आपकी, कमर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। हाथों को घुटने के ऊपर रखना है, ना कि बहुत नीचे, ना बहुत ऊपर। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इस प्रकार से इस मुद्रा में कपालभाति आदि प्राणायाम और भस्त्रिका आदि कर सकते हैं, परंतु वायु मुद्रा में इस प्रकार से बैठेंगे। और अब 3 का अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम का, ये बहुत आवश्यक है। सारे शरीर को आरोग्यता से परिपूर्ण कर देता है। धीरे धीरे जो हैं, जो कमजोर हैं, हाई बीपी, लो बीपी, या जो है क्या है, कमजोरी है शरीर की, कमर में दर्द है, और जो बहुत क्रिटिकल जो है डिजीज से परेशान, गंभीर समस्याओं से परेशान है, वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। 2 से 2.5 सेकंड में गहरी सांसों को भरें, 2 से 2.5 सेकंड में गहरी सांसों को छोड़ें। और जिनको कोई रोग नहीं है, योगी हैं, निरोगी हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, उनको तेजी से इस प्राणायाम को करना चाहिए। मन प्रसन्न हो, बिल्कुल अनुष्ठान की भांति आंखें बंद हो, और एक रस हो करके, थकना नहीं, रुकना नहीं। इतनी कैलोरी जो हमारे जो है शरीर में आवश्यक फैट है, वो धीरे धीरे बर्न होती है। ऐसी ऊर्जा से हम भरपूर हो जाते हैं। ऊर्जा का पुंज जो है हमारे पूरे शरीर में बहुत तेजी से प्रवाहित होता है। एक एक सेल रिजनरेट होते हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं वो ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाती हैं। थकना नहीं, रुकना नहीं, तेजी से करना है। कोरोना जैसी बीमारी तो पास आ नहीं सकती, फटकेगी नहीं। कोरोना को हराना है, कोरोना खुद रो करके भागेगा आपसे।
जब भी थकान महसूस हो, श्वासों को गहरी सांसों छोड़ें। वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक महत्व है कि शरीर हो या कोई भी स्थान हो, जहां पर स्वच्छता नहीं होगी, सफाई नहीं, जहां पर जिस घर में हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, जहां पर उसकी शुचिता का ध्यान नहीं रखेंगे, जहां क्लीनिंग नहीं, वहां होगा। उसे कोई बच नहीं सकता है। अपने घर की सफाई जैसे हमको अच्छी लगती है, जहां पर हम रहते हैं वहां हम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, ऐसे ही इस मन मंदिर में, इस घर में जो ईश्वर ने बनाया है, इसमें भी गंदगी ना रहनी चाहिए। यदि इसमें गंदगी रहेगी तो निश्चित रूप से हम रोगी होंगे। अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति, बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। शरीर से तो हम बाहर से तो स्वच्छ हो जाते हैं, नहा लिया, साबुन लिया, बाहर से तो शुद्ध हो गए, लेकिन अंदर से कैसे शुद्ध होंगे? अंदर से सफाई का एक ही उपाय है, प्राणायाम। प्राणायाम ऐसा है कि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, प्राणवायु लेते हैं, हमारे जो फेफड़े में जो बहुत बड़े यंत्र परमात्मा ने लगा रखे हैं, एक मशीनरी जो काम कर रही है अंदर, वो मशीन पूरे जो है अंदर के जो विजातीय तत्व है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बाहर निकालती है, और हमारे अंदर जो शुद्ध ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, उसका एक एक सेल में उसका जो है संचार करती है। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अच्छा है तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, जिससे रोग उत्पन्न नहीं होंगे। क्यों? वो सारे रोग दूर हो जाएंगे। प्राणवायु हमारी इतनी शक्तिशाली हो जाती, उनको जला करके भस्म कर देती है और उनको जो है निकाल देती है पसीने द्वारा। मिनट का अभ्यास जरूर करें। इतनी तेजी से वायु का संचार होता जैसे कई किलोमीटर दौड़ करके आता है, उससे भी ज्यादा कैलोरी इससे बर्न होती है। जितना दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, उससे ज्यादा इस भस्त्रिका प्राणायाम से होती है। तो ये बहुत उपयोगी है। चलिए अगला प्राणायाम करते हैं, कपालभाति। थकना नहीं, रुकना नहीं, क्रम के साथ, लयबद्धता के साथ, एकाग्रता के साथ, विधि पूर्वक। जो रोगी हैं, कमजोर हैं, वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, और जो पूर्ण रूप से निरोगी हैं वो इसको तेजी से कर सकते हैं, इस प्राणायाम को, क्योंकि यह प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। सैकड़ों रोगों का इलाज है। आपके पेट, आपके वेट, आपके दिमाग और शरीर के प्रत्येक अंग को, जहां पर भी कोई कमी है, जहां पर भी गांठें हैं या यौन रोग है, मलमूत्र संबंधित बीमारियां हैं, चेहरे पर तेज ओज नहीं है, निराशा है, हताशा, उसके लिए बहुत कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारा है जो पाचन तंत्र है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो पाचन तंत्र के लिए, पेट के लिए ये कपाल है कि इसको करते हैं तो इसके लाभ हमको पता चलते हैं। योगियों के लिए प्राणायाम परम आवश्यक है। कुछ शास्त्रीय प्राणायाम करते कराते कुछ शास्त्रीय तथ्य, कुछ सत्य आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम।
आवश्यकता और क्षमता के अनुसार आप इस प्राणायाम को मध्यम गति से, सामान्य गति से अथवा तीव्र गति से कर सकते हैं। थकना नहीं, रुकना नहीं। आपके जो है फेफड़े तो आपके भस्त्रिका प्राणायाम से सबल हो जाते हैं। आपकी आंतें जो है, किडनी है, ये व्यवस्थाएं, सारा सिस्टम है, कपालभाति प्राणायाम से बहुत अच्छा होता है। शास्त्रों में आता है गमनागमनं प्राणास्कारणं तथा प्राणायामा इति प्रोक्तो योगिनाम योगी साधनम। कहा कि प्राणों का लेना और छोड़ना, उनका आगमन और जो प्राणवायु है, जो वायु है, उसको लेना और उसको धारण करना। जब हम उसको ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर कारों को दूर करता है। यह और ये परम साधन है, क्योंकि प्राणायाम से हमारा मन भी नियंत्रण में आता है। इस जब हम लगातार कई दिन, कई महीने, कई वर्षों तक करते हैं, तो यह योगियों के लिए साधन बन जाता है और रोगियों के लिए औषधि बन जाता है तथा आधार बन जाता है। इसी के अनुसार यदि हम जीवन जीते हैं तो हमारा सोचना, विचारना, आहार हैं। रोग हम जीवन दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए सारे रोग नियंत्रित करने वाला है। तो मन है कि मानता नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा पहचानता नहीं। मन के घोड़े पर जो सवार हो जाता है, अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। बहुत का जीवन थोड़ा, उस पर मन घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। लाखों इस माटी में समाए, रहना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। ये मन जो है यदि नियंत्रण में आ जाए तो हमारा जीवन अच्छा बन जाता है। लयबद्धता बंद करके करेंगे, करें। यदि कोई रोग है तो उस रोग पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, वहां पर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। वहां जब ध्यान को लगा करके प्राणायाम करते हैं तो विशेष लाभ मिलता है। चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योग स्थाणुत्वमायाति ततो वायुम निरुंध्यते। कह रहे हैं कि जब चले वाते चलम चित्तम, ये मन बड़ा चंचल है, प्राणवायु स्थिर होगा
जितना जितना हम योग करेंगे, जितना जितना हमारा होगा और जितना प्राण स्थिर होगा, उतना उतना हमारा मन भी स्थिर होगा। गहरे श्वासों का जो आधान है उससे हमारी आयु बढ़ती है, लॉन्ग लाइफ, डिवाइन लाइफ होती है हमारी। हम जीव किसके साथ योग के साथ, ध्यान योग के साथ, प्राण विद्या के साथ अपने जीवन को अच्छा बनाने की मानना जो भी हमको दिखाई पड़ते हैं में ये कहते दह्यन धातु नाम भी यथा, यदि कोई धातु कोई धातु है और वो जब मलिन हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो उसको अग्नि में तपाते हैं और अग्नि में तप करके वह लोहा नया बन जाता है, बिल्कुल नया हो जाता है। सोना भी अग्नि में तप करके कुंदन बन जाता है। हमारे इंद्रियों के जो मन है, हमारे इंद्रियों में जो है, जो विकार वो दूर हो जाते हैं। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास बहुत आवश्यक है। शनै शनै धीरे धीरे इस पथ पर हम आगे बढ़ते जाते हैं। ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಡಿಯೋನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್. ಎಲ್ರೂ ಮ್ಯೂಟಿರಿ 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 ಮ್ಯೂಟಿರಿ. ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾವು ಮೌನ ಇರ್ಬೇಕು, ತಾನೇ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮುಟ್ಬೇಡಿ, ಮ್ಯೂಟಿರಿ ಮ್ಯೂಟಿರಿ ಮ್ಯೂಟಿರಿ. ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ರೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಯೋಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಇರೋದು ಕಲಿಬೇಕು, ಫೋನ್ ಮುಟ್ಲಾರ್ದೆ ಇರೋದು ಕಲಿಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರ, ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮಗಳ ದರ್ಶನವಾಗಬೇಕು. ಅವರ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ತಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಆವಾಗ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಆನಂದಮಯ, ಆರೋಗ್ಯಮಯ, ಯೋಗಮಯವಾಗ್ತದೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಮೌನ ಇರಿ, ಫೋನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಇರಲಿ. ಮುಖಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ, ಉತ್ಸಾಹ, ಆನಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಉದರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಪಾಲಭಾತಿ ರಾಮಬಾಣ, ಮಲ್ಲಬದ್ಧತೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅವರು 15 ನಿಮಿಷ प्रतिदिन. कॉन्स्टिपेशन जिनको कब्ज रहता है 15 मिनट प्रतिदिन कपालभाति करें, मलबद्धते निवाರಣೆ ಆಗ್ತದೆ, कॉन्स्टिपेशन ಹೋಗ್ತದೆ, कब्ज का निवारण होगा. करते रहे, ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, डू एंड अचीव. मंत्र श्री स्वामी जी महाराज ने दिया है। जिनको भी गले में खराश है, खांसी आती है, या लगता है कि अभी मेरा गला ठीक नहीं है, खर्राटे जिनको आते हैं, तो प्राणायाम उसके लिए बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा रुकेंगे, जितना रुक सकते हैं, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट का अभ्यास। धीरे से दाईं ओर लगा करके बाईं ओर से इसको निकाल देंगे बाहर। 2 बार कम से कम और अभ्यास करते हैं। पुनः छोड़ देंगे धीरे धीरे। और कोरोना टेस्टिंग परम पूज्य श्री स्वामी जी ने महाराज ने बताया था कि हम गहरे सांसों को पूरे ऊर्जा और रोके, जितना रुकने का सामर्थ्य हमारा 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, 2-2 मिनट तक परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज रुकते हैं। तो जिनको जाता है कोरोना का अटैक जो आता है वो फिर व्यक्ति रोक नहीं पाता है। तो ये बड़ी टेस्टिंग का साधन है। आप यदि रोज इसका अभ्यास कर तो कोरोना आपको नहीं हो सकता है।
धीरे से इस प्रकार से इसको निकाल देंगे। और यह उज्जाई प्राणायाम के बाद धीरे से गले को मालिश करेंगे, लार को निगल जाएंगे, स्लाइवा जो आती है उसको निगल जाएंगे। ये हमारे गले को बहुत सुरीला बनाता है, बहुत अच्छा बन जाता है। अब अगला प्राणायाम हम करेंगे विलोम प्राणायाम। गहरे सांसों को भरते हुए और छोड़ते हुए आरोग्यमय जीवन, आध्यात्म जीवन, पवित्रता से युक्त जीवन हमको जीना है। उसके लिए निश्चित रूप से इस प्राणायाम को करते हुए सदा सजगता, सरलता और कृतज्ञता में जीने का अभ्यास करना है। भोग हमारे अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए भोग की दुनिया हमको रोग की ओर ले जाती है। योग की दुनिया हमको उस परमात्मा की ओर ले जाती है, उस आध्यात्म की ओर ले जाती है जहां पर शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, कोई व्यवधान नहीं, कोई समस्या नहीं, समस्याओं का समाधान। योगस् चित्त वृत्ति निरोधा योगः समाधि, समाधि और समाधानम। गहरे सांसों के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। विलोम प्राणायाम 72,10,201 नस नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं। निश्चित रूप से शुद्धता का, पवित्रता का, शुचिता का आधार होता है। रोग है, भर्तरी कहते हैं भोगे रोग भयम कुले चित भयम वीते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतांतात भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम वैराग्य में वा भयम, वैराग्य में वा भयम। वैराग्य से ही हमको अभय मिलता है। उत्पन्न होगा, योग से होगा, आध्यात्म से होगा, इस ऋषि परंपरा के ज्ञान से होगा, और कोई उपाय नहीं है। इस यह योगमय जीवन, आध्यात्म जीवन हमारे लिए परम आवश्यक है, कल्याणकारी है। धीरे धीरे इस मन को मोड़ना है, धीरे धीरे इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता है पल पल में कुछ और। अभ्यास से, वैराग्य से कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। तो योगमय जीवन, आरोग्यमय जीवन जीने का साधन है। हम रोज ऐसे योग प्राणायाम के माध्यम से, आयुर्वेद के प्रयोग के माध्यम से, स्वदेशी के प्रयोग के माध्यम से अपने जीवन को जिए। और हमेशा याद रखें, स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, दो चार चीजें हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो क्रोध से बचना है, आहार में भी सात्विक आहार लेना, और योग जो करता है सात्विक आहार में ही अपने जीवन को चलाता है।
जब भी भोजन करें चबा चबा कर करें। सुबह सायं, अभी यह विकट संकट है, गिलोय का सेवन जरूर करें। गिलोय स्वरस अथवा गिलोय का काढ़ा, तुलसी का काढ़ा, तथा काढ़ा नहीं पी पाते हैं, गिलोय घनवटी का प्रयोग करें, तुलसी घनवटी, नीम घनवटी का प्रयोग करें, आंवला एलोवेरा का प्रयोग करें, रसदार फलों का प्रयोग करें, तथा दिनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए। उचित मात्रा में पानी का सेवन करें, रात्रि में समय से सो जाएं और सुबह जल्दी से उठें। समय से उठना, समय से भोजन करना, ये हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमारा सारा डे टू नाइट, निश्चित रूप से रात दिन का जो आहार विचार व्यवहार है, वह इस शरीर में आरोग्यता को जन्म देता है। खाने का कोई नहीं, सोने का कोई समय नहीं, जब मनाए तब कुछ खा लिया, करके हमको योगमय जीवन अपनाना पड़ेगा। योग से ही आरोग्य है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी, इनका अभ्यास तो दीर्घ काल नैरंत सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि। निश्चित रूप से इसके प्रति श्रद्धा, विश्वास और निरंतरता जब आएगी, हमारे शरीर में आरोग्यता आएगी और हम तन मन वतन सारे शरीर, सारे इंद्रियों को हम जब निरोगी बनाएंगे तो संसार, इस समाज को भी निरोगी बना पाएंगे। जब हम स्वयं रोगी होंगे तो संसार को और समाज को, राष्ट्र को कभी योगी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक जलता हुआ दीपक ही अन्य बुझे हुए दीपकों को जलाता है और सारे संसार के बुझे हुए दीपक मिलकर के एक दीपक को जला नहीं सकते हैं। इसलिए हम खुद जागे, जगाएं, सबको निरोगी बनाएं, सबके जीवन को महकाएं, ऐसा को उत्साह से, प्रयास से पुरुषार्थ करना है। तो ये हम अपने को निश्चित रूप से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में बहुत बड़े एक राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के इस काम में लगे हैं, महायज्ञ में लगे हैं। तो आए अगला प्राणायाम कर, भ्रामरी उद्गीत, 3 बार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मौन हो जाए। आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करते हुए पूरे मन को
आजा चक्र पर लगाएंगे। और इस प्रकार से 3 से 5 मिनट, 10 मिनट और अधिक समय तक बैठ करके ध्यानात्मक अवस्था में ईश्वर करना, ध्यान करना, गुणगान करना। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर, आंखों पर स्पर्श करते हुए आंखों को खोलेंगे। प्रकार से हम व्यायाम, आसन, व्यायाम का अभ्यास करके जीवन में आरोग्यता को पाते हैं। हमारा संपूर्ण अस्तित्व अच्छा बन जाता है। और जैसा शास्त्रों में कहा है कि योगो भवति दुखा, योग दुखों से बचाने वाला है। योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों को जो इधर उधर अनावश्यक विचार है उनको दूर करता है। योगा समत्वम युग, योग समत्वता का धारण कराने वाला है। योगा कर्म सुकौशलम, योगा समुच्यते। सारे संपूर्ण अस्तित्व को योगमय बनाने के लिए सतत अभ्यास करना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं, फिर कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपके बीच में रखूंगा। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ कि कुछ बीच में निवेदन करने का यह अवसर मुझको हमारे बहुत ही स्नेही हमारे अग्रज बड़े भाई आदरणीय भंवरलाल जी ने यह अवसर किया। इस महान कार्य में जो अपने तन मन, अपने जीवन को इसमें लगा रखा है, पर महाराज के आशीर्वाद से, उनके वो बहुत अच्छे शिष्य हैं, बहुत अच्छे शिक्षक। और जो अच्छा शिष्य होता है वो अच्छा शिक्षक होता है, अच्छा समाज को प्रेरणा देने वाला होता है, गुरु रूप है, वो गुरु के प्रतिरूप है। हमारी बहन पूज्या साध्वी देवप्रिया जी जो माँ के समान हम सबका ध्यान रखती हैं, हम सबका हूँ। हमारे आदरणीय डॉक्टर जयदीप जी, हमारे भ्राता राकेश जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। सभी इस अनुष्ठान में लगे हुए सभी साधकों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को गति दी है और सतत इस जुड़ रहे हैं, मैं आह्वान करता हूं कि इस राष्ट्र निर्माण में, आत्म निर्माण में, विश्व निर्माण के इस महान कार्य में सभी युवक युवतियां जुड़े। इसी से हमारे जीवन को, हमारे तन मन और वतन को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबके प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। सबको हृदय से नमन, अभिनंदन, वंदन करता हूं। इति ओम सम। बहुत बहुत आभार परम पूज्य परमार्थ देव जी स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में पूरे कर्नाटक के सभी योगी भाई बहनों की ओर से भक्ति पूर्वक प्रणाम। आज हमने योगियों के महातीर्थ पतंजलि योग पीठ से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रतिरूप के रूप में उनका ही रूप हमने आपने देखा और ऐसे ही आपने बहुत सुंदर ढंग से हमें इसे योग की यात्रा का आनंद, ये प्रसाद हमें आपने दिया। हम सबकी ओर से पुनः एक बार बहुत बहुत प्रणाम, आभार। और इस एक माह के इस अनुष्ठान में हम चाहेंगे कि बीच में और भी आप समय हमें दें और हमारे कर्नाटक के योग साधकों को आपका आशीर्वाद और भी मिले। और भी मैसेज वगैरह लोगों के आने शुरू हो गए हैं कि इनका एक सत्र और रखा जाए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, फोन में बात करके फिर अगली दिनांक घोषित करेंगे। तो सभी की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ಭವರ್ಲಾಲ್ ಆರ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು। ನಿನ್ನೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿಬಿಡಿ। ಈ ಪೂರ್ತಿ ತರಬೇತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ತಮಗೆ उपयोग ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ। सभी को पुनः एक बार धन्यवाद।
सायंकालीन सत्र में 7 बजे मिलेंगे। स्वामी जी महाराज, आपका भी एक दिन सायंकालीन सत्र भी होगा, हम वार्ता करके फिर आपको बता देंगे। ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಶುಭವಾಗಲಿ। प्रणाम प्रणाम जी, बहुत आनंद हुआ। हेलो गुरुजी। जी ओम गुरु जी धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। सभी कर्नाटक वासियों को हृदय से नमन, अभिवंदन है, प्रणाम है। और बहुत ही हमको गौरव है सभी कर्नाटक वासियों के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, मैं इंद्राबाद से बात कर रहा हूँ, आपको प्रणाम। और यहाँ स्वामी जी का ही इमेज दिख रहा है, स्वामी जैसे आप दिख रहे हैं। इतेश अनम्यूट इरले, म्यूट ಮಾಡಬೇಡ। आप देख गए तो बाबा रामदेव देख लिया सर। ಸರ್ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ನೋಡಿದಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ ಪೀಠದಿಂದ बहुत बहुत धन्यवाद। ಹರಿದ್ವಾರದ ಗಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಂಗೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದೆ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सरी सरी। महारायण को नमस्कार। ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿ महारायण को तलुपिದೆ। ದಿಂದ ಶಿವಾನಂದ್ जी, स्वामी जी, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी सुन रहे हैं आप? बहरीन से शिवानंद पाटिल जी है, जो बहरीन से ज्वाइन हो गए हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद। स्वामी परमार्थ देव जी नमन, कोटि कोटि नमन आपको बहरीन से। ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। कमललाल जी सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते, धन्यवादಗಳು। सर मुझे ये